meeting with office. So, have you revised whatever we did in the last class? No. So day before yesterday, yes, sir. Till there I have done. I had asked you to read point number 11, 12, 13, 14. I believe that you must have read. Can you tell me what was the last topic that we discussed? Madhusmita, Yes, sir. please tell me what was the topic that Sir, we discussed. we had discussed about the timing of public issue. This was the point. Hmm. Determinants of the capital structure. Besides that, I had asked you to do some questions also. No, just see oh, this type of leverages we did. What is leverage we did? So last yesterday I wasn't present, so No, I no, don't. not yesterday, but prior to yesterday, No, sir. We you haven't done leverage. we have not done leverage. Yes, So sir. it is We have it is done till the point number 10, timing of public issue. it is there in the recorded lecture. You please ask ma'am so that she can share the link of that lecture. Please go through it. Now there is one format of how to calculate the leverage, degree of operating leverage. There are formulas. Okay, you just note down. See, two kinds of leverage are there. One is operating leverage, another is financial leverage. So the formula of operating leverage is, just write down, degree of operating leverage equals to degree of operating leverage equals to percentage change in EBIT, Percentage change in EBI. EBIT, E capital, B capital, I capital, T capital, Yes, sir. divided by percentage change in sales. Percentage change in sales. Okay, sir. Below that, write or have you written Yes, sir. DOL equals DOL equals to contribution divided by operating profit. Okay, sir. So your DOL will be same as previous. That is degree of operating leverage. Yes. So write down DOL equals to contribution divided by operating profit within bracket EBIT. Have you written? Yes, sir. Now write down the full form of EBIT. Write down E. E stands for earning. Next. Yes, sir. B stands for before. Yes, sir. I stands for interest. Yes, sir. And T stands for tax. EBIT stands for earning before interest and tax. Now you have noted down. Now there Yes. is one format is there. Please note it down in your notebook. Please copy. This format is there in the material. Can you open the material? So wait. Hmm. Under the heading operating leverage, there is one format. Yes, sir. So please note it down in your notebook. Please copy this one. So these particulars, this one. Yes, yes, yes. Okay, so this was the thing which was discussed. Sales revenue within bracket units.
sold multiplied by selling price per unit. In the same format you have to do in the exam also. So just copy this format in your notebook. So Madhusmita, this time is suitable for you? Yes, sir. 1 to 2. Yes, sir. So can we continue with this timing in on other day also? Yes, sir. Or okay, I will see and let's see what we can do. So have you noted it down? Yes, sir. This one is noted. Please do it fast. We'll discuss it. A little bit more. 300%. So, yeah. हाँ सर हो गया. Okay. Now see, how will you find the sales of any organization? Let's say you are having a small business, small shops of selling pens. Okay. Or let's say shops of selling ice cream. You have opened one ice cream parlor. So how would you come to know that what is the sales revenue that you have earned, that you have generated, sales revenue that you have generated? So one method is that number of units sold, number of ice cream sold multiplied by the rate per unit that you have collected from the customer. Let's say you have sold 100 ice creams today, okay, and each pricing rupees 20. 20 रुपीज का आपने आइसक्रीम बेचा, एक एक आइसक्रीम, और 100 बेचा है आपने, तो कैसे निकलेगा सेल्स रेवेन्यू? सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टू हाउ मच? Units नंबर ऑफ sold. यूनिट सोल्ड. Is तो आपने 100 यूनिट्स बेचा है तो 100 × 20, जो भी आएगा अमाउंट यहाँ पे लिख देना है अमाउंट कॉलम में. आ रहा है okay. समझ में? हाँ. Less variable cost. In the last to last class, I discussed regarding variable cost, fixed cost, and semi-variable cost. Yesterday also I discussed. You are not there in the class. So see, variable costs are like if you are producing ice cream. So for producing 100 units of ice cream, 100 pieces of ice cream, ठीक है? Whatever raw material is, what would be the raw material for ice cream? The cream, milk, then some powders, maybe sugar. These are the raw material, right? हाँ सर. Colors also. Okay, then some flavors. So I think these things will be the raw material for your ice cream production. So now let's say your target is to you are selling 100 ice creams per day, but on a certain day, like some mela is there, some fair is going on, Dasara mela, ठीक है, Durga Puja. So on that occasion, there you have guessed, you have predicted that the ice cream selling will increase. Are you getting my point? Or due to the very heat wave, the sales of ice cream will go up. So in that case, what will you do? You will produce more ice cream. Your prediction is that uh, 300 up to 300 ice cream I can sell per day due to this heat wave. Are you getting my point? So, for producing 100 ice cream, whatever material is used, do you think that for 300 piece of ice cream or units of ice cream, the same amount of raw material is needed, or you need some more raw material? You tell me. Did you get my point?
सर ये तो समझ में नहीं आया, यूनिट्स प्रोड्यूस। Have you understood my question? नहीं सर। You have opened one ice cream parlor and you yourself, Madhusmita ice cream parlor is there. Okay, ice cream company is there. Okay, like Wadilal is there, Mother Dairy is there, Sudha Dairy is there, and Madhusmita ice cream company is there. Now you have your production unit. Every day you produce ice cream, 100 ice cream, and you sell. Yes Okay, sir. suddenly this heat wave came, and you have predicted that there are chances of selling 300 this ice cream, because due to this heat people like eating or taking ice cream. So what my question is, for producing 100 units of ice cream, whatever material is required, can you Okay. produce 300 ice cream with the same material, same amount of material? No sir. Yes. No sir. With the same Why? amount of raw material, how come 100 units का ice cream I can produce? Same amount का units. रॉ मटेरियल्स भी तो ज्यादा ही लगेगा ना, अगर 100 से ज्यादा ज्यादा लगेगा, यूनिट्स। वही that's what the question is. So to produce 300 ice cream you need more and more raw material. Okay, यस more and more labor is also required, more and more everything, all these steps are required. So it varies. I mean, varies according to it is directly proportional to your number of units. The number of units is increased. Similarly, the raw materials has also to be increased. ठीक है? तो अभी आपको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा सब कुछ चाहिए, तो दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट. यू अंडरस्टूड व्हाट वेरिएबल कॉस्ट इज? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया आपको. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को, ये फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन. वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट. वॉट एवर फिगर इज कमिंग, that figure you have to write, and after deducting the variable cost you get whatever figure you get, amount you get, that is your contribution. So what is contribution, Madhusmita? So sales revenue minus the revenue minus the variable cost. Very good. ठीक है. अब उसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट को हटाइए. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? See, we are discussing the example of ice cream making company. ठीक है. So in your ice सर cream making यहाँ company, पर मुझे एक चीज बस कंफर्म करना कि लाइक जो वेरिएबल कॉस्ट वही होगी ना, जो मतलब लाइक रॉ मटेरियल कुछ भी जो पैरामीटर्स है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, yes, 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 लाइक yes. ये वो हो गया एंड देन द रॉ मटेरियल्स हियर। ओके सर। ठीक है. अब देखिए दूसरा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट. सपोज for producing the raw material, I mean say the ice cream, you have taken a room in, let's say, Telco. You stay in Telco area. Where do you stay? हाँ सर, यस सर, टेलको। You stay in Telco. So in Chota Govindpur you have taken a big, what can say, big room for production of, for installation and production of for all these work. You have taken one office, one factory, everything you have taken in Chota Govindpur. You have your factory in Chota Govindpur. Okay. So now, and that is on rent. So let's say the rent per month is rupees 10,000. ओके सर। So you produce, whether you produce 100 ice cream or you produce 1,000 ice cream, your monthly rent will be fixed or not? Or यस सर। will it also vary according to the production? नो सर, इट विल रिमेन फिक्स्ड। It will remain same. So that whatever expenses that remains same, that is the fixed cost. Now you understood? यस सर। This also means that it is not directly proportional to the number of units produced. Whatever units are produced, whether you produce one unit or 1,000 units, the room rent will be same. ठीक है जी. तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट. तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का जो आया फिगर, फ्रॉम दैट अमाउंट यू हैव टू डिडक्ट
fixed cost. Fixed cost you understood? हाँ सर. And after deducting the fixed cost, whatever is remaining, the balance figure, it is called EBIT. EBIT stands for, Earning before interest and tax. ठीक है जी. पर तो अभी आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, अभी आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, तो टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट करने के पहले जो आ रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे ई अर्निंग बिफोर EBIT. ठीक है. हाँ सर. अब फिर क्या है, उसमें से आप सबसे पहले लोन, आपने जो फैक्ट्री लगाया है आइसक्रीम का, ठीक है, हाँ सर. मधुस्मिता आइसक्रीम पार्लर या आइसक्रीम कंपनी, वट एवर इट इज. So you have taken 20 lakhs rupees loan from ICICI Bank, right? So ICICI Bank will, you have to pay ICICI Bank every month. You have to pay installment as well as interest. So that interest has to be deducted from here, from EBIT. First of all, you deduct the amount of interest that you are paying to the bank. So that interest and expenses has already been charged, but now interest is being charged, is being deducted. So after deduction of the interest, whatever figure you are having remaining amount, that remaining amount is earning before tax, that is called EBT. क्योंकि आई इसमें से हटा दिया हमने. इंटरेस्ट हटा आ, दिया. आ, आ रही ना बात समझ में? हाँ सर, इंटरेस्ट हटा दिया. यस सर. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हटा दिया, तो अब EBT हो गया. अब इस EBT में से अब क्या करेंगे, अब सरकार को कुछ टैक्स भी ना देना होगा हाँ सर. कि नहीं दीजिएगा? देंगे सर, टैक्स तो देना है. टैक्स तो देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो सीधा ताला मार देगा आपकी कंपनी में. हाँ सर. ठीक है. तो अब उसमें से सीधा टैक्स माइनस कीजिए, जो भी टैक्स का लायबिलिटी है, टैक्स को कैलकुलेट कीजिए, एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टैक्स अमाउंट, वट एवर इज लेफ्ट, that is called earning after tax. ठीक है. वो earning after tax में से now you have to deduct preference dividend. preference shares, किसी ने आपकी कंपनी में, मधुस्मिता कंपनी में, लेट से मैंने कुछ पैसे डाले हैं, 5 लाख रुपए आपने मुझसे भी लिया है, तो मुझे आप क्या दोगे, आप मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे आप. सो डिविडेंड डिक्लेरेशन भी आपका एक एक्सपेंस है. तो अर्निंग बिफोर, ये जो आया EAT आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आया, उसमें से आप डिविडेंड माइनस कर दीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड. नाउ वट एवर अमाउंट इज रिमेनिंग, दैट अमाउंट इज योर्स. नाउ यू कैन से कि अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. तो इक्विटी शेयर होल्डर को अब जो बचता है, बचा खुचा जो है, वो सारा का सारा आपका है. आया समझ में? हाँ सर. सर एक चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हुई, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये कैसे निकलेगा? लाइक देखिए देखिए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया एंड देन प्रेफरेंस डिविडेंड ये कैसे निकलेगा? ये तो मैंने मधुस्मिता कंपनी, एक आइसक्रीम पार्लर का एग्जांपल लिया छोटा सा, लेकिन वाडीलाल तो छोटा कंपनी नहीं है. हाँ सर. मदर डेयरी इज नॉट अ स्मॉलर कंपनी. हाँ सर. This Sudha Dairy is not a smaller company. Amul is not a smaller. Amul is international level company. You know. अमूल यहाँ नहीं चलता है, सुधा चलता है, लेकिन अमूल इज अ वेरी बिग ब्रांड. ठीक है. इसका बाहर भी जाता है सामान. तो अमूल जैसे है आपको, जैसे वाडीलाल बहुत बड़ी कंपनी है ना. आइसक्रीम में वाडीलाल ही चलता है ना, और कौन सा है? यही सब है. तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है. मैंने तो एग्जांपल लिया आपको छोटा सा एक समझाने का, एक मधुस्मिता कंपनी का. लेकिन इफ यू आर डूइंग बिजनेस, जस्ट अ मिनट, या, so on a larger scales, we are studying the financial management, and that has to be understood on a larger scale. You will be working as a finance manager in any organization, but I take a smaller example to make you understand. So for example, in the case of Amul, there must be debenture, there must be equity share, there must be loan, huge loan, there must be preference shares. So every year company declares dividend, and the rate is already fixed. ठीक है. Sometimes it is fixed, sometimes it is variable.
So every year you have to declare dividend, and that dividend has to be paid to the preference shareholders. So that part of the dividend is to be deducted from here earning after tax. Now you understood or not? Yes, sir. आ गया ना समझ में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स में आप खुद भी हैं, आपके साथ में और है लोग हैं, जो भी है उन जो बचा खुचा है वो आपका है सारा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन बनाइए, तो इलस्ट्रेशन 1 बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए पहले, रीड आउट द क्वेश्चन। XYZ Limited एक्स वाई जेड। produced हम्म। हाँ, हम्म। produced and sold 1 lakh units of a product at the rate of rupees 100. हम्म। ठीक है, for production of 1 lakh units, it has spent a variable cost of rupees 6 lakhs at the rate of 6 rupees per unit and a ठीक है। fixed cost of rupees 2 lakh 50,000. हम्म। Yeah, but then the firm has paid interest for rupees 50,000 at the rate of 5% and हम्म। rupees 1 lakh debt. हम्म। हम्म। Calculate the operating leverage. तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड First, बाय ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इन ब्रैकेट ईबीआईटी। अब वैसे ही बनाइएगा, बनाइए उसको, अभी बनाइए। हाँ sir. Question, you just keep 6 to 7 lines blank. You note down the question later on after the class, and in the during the class you note down the solution only. You just do this sum on your own. If you don't understand, I will explain. Do it. So degree of operating leverage का formula लिखिए, क्या है solution में? Contribution divided by EBIT. Particulars लिखिए, amount लिखिए। हाँ सर, सर तो टोटल जैसे सेल्स रेवेन्यूज वहां से शुरू करनी है एंड देन ईबीआईटी। हाँ, इससे हाँ पहले सर। कंट्रीब्यूशन निकालना होगा हमको। हाँ सर। तो लिखिए सेल्स रेवेन्यू विद इन ब्रैकेट हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, 1 लाख यूनिट्स आर देयर। ठीक है, और कैसे करके सेल्स कर रहा है? एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर यूनिट। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 हाउ मच? 10 lakhs लेस, जैसे हमने पीछे पढ़ा है फॉर्मूला में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज आवर कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी? 6 रुपए करके है। कॉस्ट है इधर पे ठीक है, तो 6 1 लाख, लाख है एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट। 6 लाख नहीं है, 1 लाख को मल्टीप्लाई किया है 6 से, तब आया 6 लाख। What is the formula of variable of finding out variable cost? The formula is units produced multiplied by cost per unit. So they are producing 1 lakh units. So 1 lakhs multiplied by rupees 6, that comes to rupees 6 lakhs. So 10 lakhs minus 6, are you understanding or not? हाँ सर। हाँ तो 10 lakhs minus 6 lakhs कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन हो गया 4 लाख। जो हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन निकल गया अपना 4 लाख। अब कंट्रीब्यूशन में से मुझे फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है। तो क्वेश्चन में दे हैव गिवन फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच? 2,50,000। सो फ्रॉम दैट 4 lakhs you have to deduct 2,50,000. So whatever is left, that is EBIT. So contribution figure you have got, contribution amount you have got calculated. सर वही कर रही हूँ कैलकुलेट सर। अच्छा, करिए करिए, करके आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, तब ना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। हाँ सर। हम्म। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन कितना 2,50,000 EBIT that is 3 minus 1,50,000. Okay. That is
EBIT contribution 1 It's so simple question. सर POL जो है वो 8/3 है, मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है. Now you explain this question to me. यस सर. सर सबसे पहले तो सेल्स रेवेन्यू निकालना है. सेल्स रेवेन्यू के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो होंगे, जो कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया है एंड एट द रेट ऑफ 100, तो वहां से सेल्स रेवेन्यू 10 lakhs आ गया. एंड देन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बेसिकली गिवन एक 6 lakhs के करीब है, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस है करीब प्लस. करीब नहीं है, 6 lakhs ही है. हाँ सर 6 lakhs है. हाँ. यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे? कॉस्ट पर हाँ यूनिट. हाँ हाँ, ठीक है. कंट्रीब्यूशन निकलेगा सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 4 lakhs आ गया. एंड देन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो गिवन है, वो है 2,50,000. नेक्स्ट EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो निकलेगा सर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट विल बी 1,50,000. देन ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन जो का जो वैल्यू है 4 lakhs डिवाइडेड बाय EBIT 1,50,000, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 8/3, जो डेसिमल्स में 2 पॉइंट अराउंड समथिंग कुछ है. नहीं, अराउंड राउंड नहीं, जो है पूरा आपको बताना होगा, पूरा लिखना होगा जितना है और जो आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन. 2.667. हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया. हाँ सर. Now in this question you need to एक मिनट रुकिए. इसमें आपको आगे भी निकालना है. ये दिस विल योर होमवर्क. In this question, in question number 1, you write down paid interest this much at the rate of क्या क्या दिया, at the rate of 5% interest and debt this much. You have to calculate interest after tax, sorry, earning after tax, EAT you need to calculate. ठीक है, in this question, this will be your homework. ठीक है सर. EAT you have to calculate. Write down the question. In this question, in addition to the question whatever they have given, this question, my question is calculate EAT in this question itself. ठीक है. Now read question number 2. बट सर EAT कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट चाहिए. अब वो क्या चाहिए आप देखिए, मैंने बताऊंगा. अब you have to apply your mind. You see how will you do it. Okay, and next class you will be telling me the answer. Now illustration number 2, read out. From the following particulars of ABC Limited, calculate operating leverage. पढ़िए. तो सर उसमें पर्टिकुलर्स इन अमाउंट में दिया हुआ है. सेल्स रेवेन्यू लाइक इस फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है. सो सेल्स रेवेन्यू हो रही है 10 lakhs एंड वेरिएबल कॉस्ट हो रही है 6 lakhs एंड कंट्रीब्यूशन है 4 lakhs. मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ ना, इलस्ट्रेशन तो वैसे ही है. फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000 एंड EBIT 1,50,000. ये क्वेश्चन में क्या है कि आधा क्वेश्चन दिया है, आधा क्वेश्चन नहीं दिया. ओके, हाउ विल यू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज? टेल मी. यू जस्ट कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज. हाँ सर, अभी तो कैलकुलेट किया था. कंट्रीब्यूशन बाय EBIT करिए, कितना आया? तो वैल्यू तो वही रहेगा जैसा वही है ना. हाँ, सेम वही. चीज है. अब देखिए इसमें क्या है, अभी परसेंटेज चेंज. ठीक है, परसेंटेज चेंज
कैसे होता है, इसमें 2 इयर्स का कैलकुलेट किया गया है, 2 इयर्स का कंपैरिजन देखिए। कैलकुलेशन परसेंटेज चेंज आप कैसे कीजिएगा? नाउ यू आर इन फोर्थ, इन विच सेमेस्टर यू आर इन एमबीए? सेकेंड सेमेस्टर। हाँ सर। So how will you calculate your percentage of change in your marks? जो Unless करंट and है प्रीवियस। current marks, unless and until you appear in exam and your mark sheet has come, you cannot do it. So after passing your second semester, going to third semester, now you can compare your this marks with the previous marks. So percentage change, how much marks you obtained in your semester one and how much marks you obtained in semester two. So similarly, what they are doing, they have taken 2 years, okay, 2002 and 2004, and percentage change they have calculated. So sales revenue, sales was in 2002 it was 10 lakhs, in 2004 it is 12 lakhs 50,000, 2004 में उसका सेल्स बढ़ गया। ये सेल्स जो है 10 लाख था, 12.5 लाख हो गया। अब बढ़ा तो हेलो। है ना, ऐसा तो नहीं कि आप 10 लाख, आप 1,000 आइसक्रीम बनाते हैं और बेच लेते हैं 1200 आइसक्रीम, हो सकता है ऐसा? नहीं सर। इज इट पॉसिबल दैट नहीं यू आर, सर। नहीं ना? तो उसके लिए आपको 1200 आइसक्रीम बनाना होगा तब ना बेचिएगा। हाँ सर। तो उसी तरह से यहाँ पे 10 लाख का जो सेल्स है, और जो नेक्स्ट ईयर 2004 में 12,50,000 हो गया है, मतलब कि इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा किया होगा। तो उसी तरह से जब प्रोडक्शन ज्यादा किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा हुआ होगा। तो 2002 में कितना है? 6 लाख है अपना, एंड 2004 में कितना है? 7,50,000 है। तो आप देखिए 10 lakhs है, सेल्स रेवेन्यू वाज इन 2002 it was 10 lakhs, and 2004 it is 12,50,000. So percentage change is how much? 25%। आ रहा है समझ में? हाँ सर। How will you calculate the percentage change? You tell me how this 25% has come. सर जो करंट वैल्यू पहले तो उसका और प्रीवियस वाला का डिफरेंस होगा एंड देन टोटल इनटू 100। करके देखिए तो आ रहा है? सर एक मिनट। जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से करके आ रहा है। आपने ग्रेजुएशन किस में किया था? बोटनी में? डू इट फास्ट। यस। हाँ सर आ गया 25%। आ गया ना? क्या फॉर्मूला है? अर्लियर यू टोल्ड मी रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। सर सर जो करंट वैल्यू जो 2004 में वेरिएबल कॉस्ट ये बता रही हूँ 7,50,000 माइनस जो 2002 में 6 लाख डिवाइडेड बाय जो करंट अमाउंट है दैट इज करंट 2004 में 7,50,000 इनटू 100। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। पहला देखिए, ऐसा कीजिए ना, आप देखिए 12,50,000 है और 10 लाख है, तो 1250 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, ठीक है? 3 3 जीरो हट गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए, ठीक है? चलिए उसको आप निकाल लीजिएगा। तो क्या है, ये 2002 में इतना है सबका, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आया, कंट्रीब्यूशन आ गया, और सबका परसेंटेज चेंज है। 6 लाख था तो 7.5 लाख हो गया वेरिएबल कॉस्ट, 10 लाख था सेल्स रेवेन्यू तो 12.5 लाख हो गया। 25% का चेंज है, हर जगह 25% है। कंट्रीब्यूशन हो गया 4 lakhs, 4 lakhs to 5 lakhs इट हैज बिकम। हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये भी 25% है। उसमें से फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किए, तो फिक्स्ड को अभी देखिए एक चीज और है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो प्रीवियस एग्जांपल में था 2002 में 2,50,000 था, 2004 में भी 2,50,000 ही है। जैसे मैंने बताया कि आपका रूम रेंट है, चाहे आप एक आइसक्रीम बनाए या 1,000 बनाए,
तो रूम का रेंट सेम ही रहेगा ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम। तो 2.5 लाख का 2.5 लाख है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब ईबीआईटी कितना आ गया, 1.5 लाख आ गया, 2.5 लाख आ गया। ईबीआईटी में चेंज कितना हो गया, 66.67% आ गया। अब परसेंटेज चेंज का क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू इंक्रीज इन रेवेन्यू प्रॉफिट और अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस और प्रीवियस ईयर। ठीक है। हाँ सर। हम्म। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, इसको आप बनाइएगा ठीक से। आप समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर भी आ गया। हाँ सर। इसको अपने से बनाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ सर, ऑपरेटिंग लेवरेज ये पढ़ा के सर तब आपको ये थोड़ा जो आपने जो होमवर्क दिया था इलस्ट्रेशन 1 में से ईएटी निकालने के लिए, तो हम्म, सर उसमें ईबीटी माइनस टैक्स करते, तो यहाँ पे टैक्स में, क्योंकि सर ईबीटी तो निकल गया मेरा, बट सर टैक्स में मेरे को एक यहाँ पे एक मेंशन है 1 लाख डेप, तो यही एज अ टैक्स होगा क्या सर? बट तब तो कुछ बचेगा नहीं जी मैम। कि सर उस पर टैक्स नहीं है, या फिर No, no. टैक्स कैलकुलेट करते हैं। What do you mean by debt in English? I'm not asking in your accountancy. Tell me. अरे किसी को सुना नहीं है बोलते हुए कि आई एम इन डेट? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कर्ज में हूँ। हाँ सर। मैं कर्जे में हूँ, मैंने कर्जा लिया है, मैं ऋण में हूँ। हिंदी में ऋण हो जाएगा, इंग्लिश में कर्ज हो जाएगा। तो डेट मतलब हुआ लोन, तो टैक्स कैसे हुआ? टैक्स तो हो गया सरकार का लायबिलिटी, हाँ सर, तो फिर वो तो मुझे भी समझ में आया, लेकिन सरकार को देना है। टैक्स, एनी टैक्सेशन, अ पर्सन कैनॉट चार्ज यू टैक्स अनलेस इट इज अ गुंडा टैक्स। ठीक है। हम्म, गुंडा टैक्स, यू नो, there is gunda tax. If you do any kind of work, some gunda will come and they will ask you कि इतना पे करो, that is gunda tax. So any taxation authority is government and government only. ठीक है। तो टैक्स इज अनदर थिंग एंड डेट इज अनदर थिंग। डेट मतलब हुआ लोन। हाँ सर। हाँ बोलिए। तो सर वो तो लोन हो गया, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ईएटी तब फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पीएटी कैलकुलेट कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि कुछ नहीं दिया ईएटी है में इसमें। आपको टैक्स चाहिए, और टैक्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। नहीं है तो नहीं निकालेंगे, हाँ जितना सर, देगा ईबीटी क्वेश्चन में उतना ही ना निकालेंगे। अपने मन से क्वेश्चन कैसे बना देंगे? ये तो मैंने आपको अपने मन से क्वेश्चन उसमें डाल दिया है, ऐड कर दिया है, ताकि आपको सीख पाइएगा आप। ठीक इसीलिए है मैंने सर। ऐड किया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा जितना आएगा उतना ही बनाना है, उससे ज्यादा ऐड करके नहीं बनाना है। ठीक है। ठीक है तो सर। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको समझिए और मुझे आप खुद एक्सप्लेन कीजिएगा कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगा ये क्वेश्चन। नाउ सर हो गया सॉल्व वैसे। हो गया ना, लेकिन फिर मैं पूछूंगा और उसमें से ओके बीच सर। बीच से क्वेश्चन निकाल के, सो दैट आई शुड आल्सो नो दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक है नाउ सी सर। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या एप्लीकेशन है देख लीजिए। इट इज हेल्पफुल टू नो हाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट वुड चेंज with a given change in units produced। ये क्या हेल्प करता है आपको? ये हेल्प करता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैसे वो चेंज हो रहा है विद अ गिवन चेंज यूनिट्स। आपका जो यूनिट्स, जैसे मान लीजिए 4 लाख बनाते थे, 1 लाख बनाते थे, तो अभी आप 1.5 लाख बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1.5 लाख प्रोड्यूस करने के लिए यूनिट जो चेंज हो रहा है 1 से 1.5, तो आपका प्रॉफिट भी कितना चेंज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जानने में हेल्प करता है ये। और क्या हेल्प करता है? इट विल बी हेल्पफुल इन मेजरिंग बिजनेस रिस्क। ये जो आपका लेवरेज का जो आता है रेशियो, इससे आपका बिजनेस कितना रिस्की है वो भी पता चल पाता है। ठीक है। यस। तो ये उसमें हेल्प करता है ये। अब हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज, सी आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लास when you were there that financial leverage and this two kinds of leverages are there. One is financial leverage, another is operating leverage. In exam it will be asked. If it was not asked in the last year, then this year be sure that you are definitely going to get question from leverage topic.
They may ask you define financial leverage. Okay, 5 marks or 10 marks, or they may ask you differentiate between financial leverage and operating leverage. 10 marks. आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, जहां भी लिखे वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 बार लिख दीजिए वहां पे, और उसको याद कर लीजिए अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो। ठीक है सर। ठीक है, तो हाँ सर। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? अ फर्म may need long-term funds for long-term activities like expansion, diversification, modernization, etc. आप बताइए कि आप जो है मॉडर्नाइजेशन, कोई भी बिजनेस में पुराना सिस्टम से आप चल रहे हैं, आप कर रहे हैं काम, तो होगा नहीं होगा? नहीं सर। आपके पास पुराना मोबाइल है छोटा वाला, उससे आप क्या कर पाइएगा? ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पाइएगा। सिर्फ सीधा बात कर पाइएगा। तो आपको चाहिए जो मॉडर्न है, एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, वो चाहिए ही चाहिए, तभी होगा आपका ऑनलाइन क्लास। सो दैट इज मॉडर्नाइजेशन। बिजनेस को भी मॉडर्न करना होगा, नया अगर मार्केट में compete करना है, मार्केट में बने रहना है, तो मॉडर्नाइजेशन करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? मधुस्मिता, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? इसमें कुछ भी चेंजेस जो होते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू। जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। तो कोई भी अगर गुड्स हो या सर्विसेज में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या गुड्स उसमें हो, अगर इसकी बात कर रहे हैं पोटेंशियली। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन वो वैरायटी ऑफ गुड्स एक हुआ, एक दूसरा होता है गोदरेज है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। गोदरेज, गोदरेज का ताला आता है, मालूम है आपको? हाँ। गोदरेज का अलमीरा भी आता है, गोदरेज का फ्रिज भी आता है, गोदरेज हाँ। का एसी एसी भी आता होगा शायद, एसी कूलर ये सब भी आता होगा। तो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स suitable for different customers and suitable for different segments of the business. You understood or not? They are making lock, keys, keys also they are making. गोदरेज का जैसे ताला आता है वैसे चाबी भी आता है, वो गोदरेज की चाबी से ही खुलेगा और कोई चाबी से नहीं खुले, कोई डुप्लीकेट काम नहीं करता है उसमें। ऐसा जितना तिजोरी वगैरह रहता है ना, हाँ। हाँ, बैंक में तिजोरी देखा है आपने? यस। हाँ लॉक। जहाँ कैश कैश रखते हैं, वॉल्ट, वो सब ना, वो सब होता है बहुत स्टैंडर्ड, ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। तो क्या है मेरा कहने का मतलब? डाइवर्सिफिकेशन इनटू द बिजनेस, डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स भी है आपका, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सुटेबल फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है। टीवी में जो चैनल है, एक ही चैनल आते रहेगा, स्टार टीवी, तो कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। स्टार का ही स्टार किड्स है, स्टार सिनेमा है ना। स्टार कार्टून भी होगा कुछ, मैं बता रहा हूँ, स्टार कुछ और होगा, XYZ। तो फॉर डिफरेंट व्यूअर्स दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर चैनल into different segments so that different viewers, for all people also, they can view their, watch their TV. Did you get my point or not? यस सर। Diversification you understood? हाँ सर। What is expansion? यस सर। What is expansion? Expansion. एक्सपेंशन किसी भी चीज में कुछ इंक्रीज हो रहा हो, एक्सपेंशन इन अगर आप यूनिट एक्सपैंड कर रहे हैं, दैट्स बिजनेस एक्सपेंशन या फिर वैसा कुछ। क्या बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर इंक्रीज करना किसी भी कोई अगर यूनिट्स है या फिर अपना आउटलेट है या फिर वॉल्यूम, किसी चीज को एक्सपैंड करना। हाँ, देख लीजिए, जैसे आपका बिजनेस है, मान लीजिए कि आपका
आप देखिए, बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे पहले था इलाहाबाद बैंक था, ठीक है। अभी इलाहाबाद बैंक ने वो क्या हो गया, मर्ज हो गया उसके साथ, किसके साथ, इंडियन बैंक के साथ। तो क्या हुआ, उसका बिजनेस एक्सपैंड हो गया, जितना उसका कस्टमर था इसका भी कस्टमर हो गया। ये एक होता है। तो दो तरह से एक्सपेंशन होता है, या तो अपना खुद का यूनिट आप बढ़ाइए, खुद का प्रोडक्शन बढ़ाइए, खुद का प्लांट बढ़ाइए, या जो दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनको बाय कीजिए। आ रहा है समझ में? सो देर आर टू काइंड्स ऑफ बिजनेस कैन बी एक्सपैंडेड इन टू वेज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो आप या तो किसी का बिजनेस को बाय कर लेते हैं सेम सेगमेंट में, सेम बिजनेस को, या किसी या फिर अपना बिजनेस को, यूनिट को बढ़ा सकते हो। दैट इज व्हाट एक्सपेंशन मीन्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. The financial manager job is to compose funds. The required funds may be raised by two sources, equity and debt. Equity मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, वहां से ले सकते हैं, वहां से मतलब सोर्स कर सकते हैं फंड, एंड डेट, डेट मतलब ऋण या डिवेंचर, वहां से ले सकते हैं। यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज टू कंपोज कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो यूज ऑफ वेरियस वेरियस सोर्सेज मतलब इक्विटी से लेना है कि डेट से लेना है कि लोन से लेना है कि अपना पैसा डालना है, कहां से क्या करना है, दैट सोर्स जो जहां से लाते हैं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। द यूज ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, sources of funds such as debt and preference share capital along with the equity share capital in capital structure is described as financial leverage. तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? द यूज ऑफ फिक्स्ड चार्ज, sources of funds such as debt and preference share capital along with the equity share capital is capital structure and is described as financial leverage. तो फाइनेंशियल लेवरेज में क्या क्या आ जाएगा जी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और चार्ज, फिक्स चार्ज, डेट, ये सब आ जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज में। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, फाइनेंशियल लेवरेज इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी। मतलब फाइनेंशियल leverage is the ability of the firm to use fixed financial charges to magnify the effects of changes in EBIT on firm's earning per share. Earning before fixed charge मतलब हुआ excuse me, fixed charge मतलब हुआ कि जो आपने लोन लिया है, या आपने डिविडेंड दे रहे हैं आप, या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या जो भी आपका फिक्स्ड अमाउंट है जो चार्जेज है कैपिटल पर, तो उस पे उस लोन के अमाउंट को, या जो प्रेफरेंस कैपिटल है, जो प्रेफरेंस शेयर है, या जो इक्विटी शेयर है, उस सब को आप इस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइज करते हैं ताकि आपका ईबीआईटी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और आपका जो फर्म का अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ा हुआ रहे। तो ये उसका एक मतलब वैसा एबिलिटी होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? फाइनेंशियल लेवरेज में। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल लेवरेज में बी डिफाइंड एज द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द यूज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी जैसे डिवेंचर हो गया, जैसे लोन वगैरह हो गया, तो वहां पे जब आप ये सब लेते हैं, बाहर से पैसा लाते हैं, किसी से पैसा लाते हैं, तो उस पैसा को ऐसा यूज कीजिए कि आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाए, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बढ़ जाए। तो ये चीज देखा जाता है फाइनेंशियल लेवरेज से। आ रहा है समझ में हाँ सर। कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो फिर मैं भी पूछूंगा आपसे, जैसे आपको आ रहा है समझ में, मुझे कुछ कुछ नहीं आता तो मैं भी पूछ दूंगा, तो बताना होगा आपको, ठीक है। सर। In other words, financial leverage may be defined as the payment of fixed rate of interest for the use of fixed interest bearing securities to magnify the rate of return as equity shares. It is also known as trading as equity. ये मैं आपको जब दूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आपका एग्जाम भी पेंडिंग है, एग्जाम भी लेना है मुझे, तो ये ट्रेडिंग एज इक्विटी क्या होता है ये भी मैं दे सकता हूँ। हेंस
Financial leverage results from the presence of fixed financial charges इन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब जो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है, जिससे कि प्रॉफिट पता चलता है या लॉस होगा ये पता चलता है, तो वहां से क्या है उसी के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल लेवरेज रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस क्या है? जो आपने फिक्स्ड लोन लिया है, फिक्स्ड जो आपने डेट लिया है, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज एसोसिएट्स विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। The fixed charge do not vary with the firm's EBIT। फर्म्स का EBIT कितना भी हो, लेकिन फिक्स चार्ज जो है वो घटता बढ़ता नहीं है। जैसे फिक्स कॉस्ट नहीं घटता बढ़ता है, वैसे फिक्स चार्ज आपने लोन लिया है 10 लाख का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा ना जी। हाँ सर। कि घट जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं सर। हाँ, तो एट। वही कहा जा रहा है, दे मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ EBIT अवेलेबल टू द फर्म। और ये ऐसा लायबिलिटी है कि आपको पे करना ही करना होगा, चाहे फर्म का EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है कितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो लायबिलिटी है वो आपको देना ही होगा, ठीक है। इफ इट indicates the effect of on EBIT created by the use of fixed charge securities in the capital structure of a firm। फाइनेंशियल लेवरेज इज कंप्यूटेड एज द फॉलोइंग फॉर्मूला। देख ली फॉर्मूला लिखिए तो इसका फाइनेंशियल लेवरेज का। यस सर। फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय EBT और टैक्सेबल इनकम। EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय EBT और टैक्सेबल इनकम, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू DFL इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS। EPS stands for, are you writing? यस सर, आई एम राइटिंग, बट ईपीएस का तो पता नहीं है। EPS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, E फॉर अर्निंग, P फॉर पर, S फॉर शेयर, अर्निंग पर शेयर। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS, that is earning per share divided by percentage change in EBIT। हाँ सर, हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फेवरेबल लेवरेज अकर्स व्हेन द फर्म अर्न्स मोर ऑन द एसेट्स। एसेट्स जो आपने अप्लाई किया है उस पर जब कंपनी ज्यादा बनाती है, ज्यादा अर्न करती है, तब वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। एसेट्स परचेज विद द फंड्स देन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ देयर यूज एंड वाइस वर्सा। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज लीड्स टू हाई फाइनेंशियल रिस्क। हाई, अगर आपका हाई वो आया है, ज्यादा आया है, हायर आया है आपको लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, तो ज्यादा रिस्की है आपका फर्म। द फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द रिस्क ऑफ द फर्म नॉट बीइंग एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। क्या रिस्क है? द फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द रिस्क ऑफ द फर्म नॉट बीइंग एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। जो इंटरेस्ट आपको पे करना है हर साल हर महीना, वो भी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का रिस्क रहता है। हेंस द फाइनेंशियल मैनेजर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द लेवल ऑफ EBIT। जब आप as a finance manager, when you are appointed in any organization, then you have to take care the level of EBIT and fixed charge while preparing the firm's financial plan। ये मुझे मालूम है कि आपको समझ में नहीं आया है, आप सही सही बताना, समझ में नहीं आया ना? ये पैराग्राफ तो नहीं आया। ठीक है, यही पैराग्राफ नहीं आया है, कोई बात नहीं, अगला पैराग्राफ सब आ गया है। हाँ सर, वो आ गया। तो ये अगला पैराग्राफ जो है, मैं सुनो, यस सुन सर। लीजिए, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर।
Question number 3 is your homework. Okay. Okay, sir. हाँ sir. And that previous question number 2 also Yes, sir. you will be explaining to me in the next class. And in one in question and in question number 1 I have added one more question from my end that has to be solved by you. And apart from that, the assignment is main part of the assignment is on financial leverage and on operating leverage. On both the leverages you have to give a presentation, a small presentation of 5 minutes. This is what the assignment is. And don't fear from the all these things, and don't absent the class. That assignment is there, so then I should absent or skip the class. I can assure you, you will be benefited from my class. Okay, sir. Are you benefited or not? Sir? Do you get any benefit from this class or not? Yes, sir. Okay. So from today's class, do you have any doubt? No, sir. Except the part after formula. Okay. That's Formula you have to memorize it, learn it by heart. Formula you have to remember. Memorize it. No way. That formula you have to memorize, learn by heart. Number 2, you have to memorize that format also. okay, sir. Unless and until you do that, you won't be able to solve even a single question. ठीक है Okay, जी? sir. तो हाँ, आप sir. नेक्स्ट क्लास में आपको क्या क्या असाइनमेंट है आप खुद से प्रॉम्प्ट होके बताइएगा. और 5 मिनट आपको दोनों पर देना होगा प्रेजेंटेशन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई वांट यू टू लर्न इट सो दैट यू कैन राइट few points. ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, sir. बाय. Thank you, sir.